65 to 70 cities you have already worked. या प्रोजेक्ट बन चुके हैं 65 बन चुके हैं. हाँ हाँ May I ask कितने प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं? 1000 तो क्रॉस हो चुके हैं 1000 प्रोजेक्ट्स यू हैव डन. हाँ हाँ 1000. डार्क साइड बताओ रेस्टोरेंट्स का, बिकॉज बहुत सारे ऑडियंस हैं, उनको ना रेस्टोरेंट लाइन बहुत ग्लैमर लगती है. खड़े होके चलाना पड़ता है एंड इट्स नॉट ऑलवेज दैट इजी. So one word that describe Abhigyan Negi. हसलर Choose collecting alcohol bottles or sneakers. अल्कोहल बॉटल्स Overused word in the design world. सस्टेनेबिलिटी ऐसा कुछ होता ही नहीं है. What's your guilty pleasure after a long, tiring day? I mean, I like partying, I like enjoying my life. So, going out, drinking, meeting people, So, night owl or early bird? night owl, One word your team would describe you. tyrant, मतलब very demanding. Hello everyone. Today I am superly charged because my guest today is a powerhouse of energy, creative mind behind the most iconic hospitality and retail spaces. Let's welcome ever dynamic, ever innovative Abhigyan Negi, founder Chrome Design Studio. Hi, Hi, how are you? very good. Welcome. Thank you. The man full of energy. I think you are, if I'm not wrong, the Ranveer Singh of the industry because of your energy. And ये दो ही क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली लोगों के होते हैं. एक वो है ना हमारा इन्फ्लुएंसर ओरी, ये ओरी कहाँ से आया है, और दूसरा ये है कि वेयर इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम. सो कहाँ से भाई ये एनर्जी लेके आते हो? बिकॉज एनर्जी के लिए सलाम है. बस अंदर से आती है. एवरी डे मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप यू फील लाइक कि आज क्या करना है एंड देन एवरी नाइट ends with whatever has happened. So morning to evening it just feels like कोई मंत्रा नहीं है एनर्जी का, बस नहीं नहीं काम से एनर्जी आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है. अंदर से ही आती है. So Abhigyan, हमारी luckily एक बारी in the evening we were having this chat and you told me some story about you which really motivated me. तो मुझे लगा यार अगर मुझे मोटिवेशन मिल सकती है तो हमारे ऑडियंस को भी मिल सकती है. तो that's why I requested you. So thank you very much. आप जर्नी विद सीजे सीजन 2 में आए और you are sharing your story. So if we start with just for the audience to understand, when did you start your journey? थोड़ा सा अपना school and थोड़ा background अगर आप बताओ. When did you start? Early age or when? I did kind of a research, but I want to hear from your. Okay, so I'm right now 40 years old, so I've been doing this practice for 15 years. And उससे पहले की कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. So when I was in school, I wanted to become a sculptor. क्लास पास में बैठता नहीं था. So then I thought कि आर्टिस्ट बन जाता हूँ, बढ़िया है. But my father was an engineer, and then he wanted everyone to become an engineer. So I revolted. I said कि ये सब नहीं करूँगा. I want to be a artist sculptor. तो फिर क्लास 12 में NID के पेपर दिए, हुआ नहीं. So then पापा ने बोला इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लो. So then I said ये तो नहीं हो पाएगा. Then I revolted. I said that let me do architecture, which is somewhere in between, and which has got that realm of. उस टाइम तो पता नहीं था architecture क्या होता है. It's just that कि हाँ चलो इंजीनियरिंग नहीं है तो कुछ और है. And then he was so adamant. He said कि मैं पढ़ने नहीं दूंगा. So then he said कि I'll not pay your college fees. हमने कहा चलो देखी जाएगी. So that's how I started. I joined TVB and then we started college. फिर कॉलेज का जब फीस देने का टाइम आया, 6 महीने हो गए सेकेंड सेमेस्टर में, तो पापा ने बोला सॉरी बड़ी, ये अपने आप देखो. देन दैट इज़ व्हेन थिंग्स स्ट्रक मी एंड देन आई जॉइंड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. सो उनके लिए 3D बनाता था मैं. आई यूज्ड टू डू बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच इज़ 2003, which is I think so 22 years back, I started with an agency. And then I learned direct consumer marketing. सो फिर मैं जाता था, अलग अलग कैंपेन होते थे. इनो बेचना है या कोई रेडियो लॉन्च हुआ है वर्ल्ड स्पेस, हाउ टू कम डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. एंड देन आई लर्नड द आर्ट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट. सो ऑल थ्रू आउट 5 years ऑफ कॉलेज आई वॉज इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. तो 5 साल तक मैं क्रिएटिव डायरेक्टर बन गया था. और फिर चौथे साल में कॉलेज बंद हो गया. मतलब ये was in TVB and the government, the owner said I don't want to run it, अब वापस ले जाओ. Okay. Then the college got shut. Then we filed a case in Supreme Court that कि now अब क्या करें.
for 4 साल पढ़ाई कर ली. Hmm. So then we started a college called USAP, which is University School of Architecture and Planning. Okay. And that's how that journey was. So I was always very entrepreneurial in that sense. Even like say class 10 के बोर्ड के बाद लीफलेट बांटता था. लीफलेट बांटते थे? हाँ, निफ्ट का लीफलेट बांट के 500 रुपये मिलते थे. I was always कि I don't want to sit idle. If I have that time, what should I do? Then I sold a pressure cooker also. Class 10th के बाद I saw an ad कि you'll get 500 rupees. I didn't know what will happen. So हम गए एक दुकान, एजेंसी था, वहाँ गए, उन्होंने प्रेशर कुकर पकड़ा दिया, बोला टाई पहनो और जाओ. जीके के हर गली में जाके हम नॉक करते थे उस टाइम. तो तो आप बेसिकली डोर टू डोर सेलिंग करते थे? किया था. वाओ. And that is class 10th की बात बता रहा हूँ. That is what taught me no. That means you knock a door, someone will say कि यार sorry यार दरवाजा बंद कर देंगे. It's okay. Doesn't matter. Again knock the next door. Again knock the next door. So you never say, you never get. स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम द I was always a hustler. So class 10 से ही है. उसके बाद जब पापा ने वर्ट लगाई तो जरूरी थी. Then it's like then कॉलेज की फीस थी, पापा ने बोला बिजली का बिल तो दे, रेंट. पहला रेंट, घर का रेंट. सेकंड था बिजली का बिल. So then he really prepared me to be self-sufficient. And then ever since I've been being surplus in terms of whatever I need and whatever I spend. And funnily, first project I did, I got 3,000 rupees. We went to a bar in Ansal Plaza. We spent 2,000 rupees on that only. Matlab, the value for money, I mean, it was never there. But still, when you have to really take care of yourself at a very early age, then you understand the value for money, understand value for professionalism. That means अगर मैं 6 बजे तक कॉलेज होता था, 8 बजे आता था किसी के घर में काम करने, रात को 12:30 1 बजे तक काम करता था, फिर वो मेरे को घर छोड़ने आते थे कि अब अगले दिन सुबह 8 बजे कॉलेज जाना. So I used to slog a lot in terms of timeline. फिर पूरी रात काम करता था, पूरा दिन कॉलेज करता था. इज इट बिकॉज यू वर अ हसलर और आपके घर की रिक्वायरमेंट थी आपको काम It was करना, a या situ- डैड ने आपको एक सिखाया कि It was a situational need. Dad also taught me that if you want to earn something, you'll have to work towards it. And I learned the hard way, but it was required. And it's been a journey ever since that you really feel you value time, you value money, you value hard work, and that's always been the case. And then ever since I was always that person who does something else. In college also we used to do a lot of submissions and a lot of things. It was supposed to be a pattern of things. So luckily in our college you were supposed to break the pattern. That means पहले दिन गया आर्ट क्लास में, बोला पाव से पेंटिंग बनाओ, which was unusual. मैंने कभी सुना नहीं था कि पाव में पेंसिल डालो और पेंटिंग बनाओ, और उसकी पेंटिंग बनाओ, ये नहीं कि आप खेल रहे हो. So that is what taught that unlearning skill की हाथ से ही पेंटिंग बन सकती है. तो टू दैट सेंस रैगिंग ऐसे होती है कि एस से पेंटिंग बनाओ, फिर सबके एस में पेंट लगा के पेंटिंग बना के क्लास में ऐसे लगता है पेंटिंग बनाओ. एस से. इसको Really? जीपी कहते थे. रियली? या And what- ट्रेडिशन होते जीपी गार्ड पेंटिंग. सो हमारे कॉलेज में ट्रेडिशन एक्चुअली ट्रू है, बिकॉज मैंने सुना है इसके बारे में, बट ये एक्चुअली ट्रू है. रैगिंग का पार्ट है. रैगिंग का पार्ट है. It's a icebreaker, so you go to the toilet, make a painting, and your hair can also stick to it. Oh my god. Then there's a class with all the seniors, and then there's a kind of a thread in which everyone puts their painting, and then you have to give a crit, and you have to explain why I made it like that. Oh my god. But it's an icebreaker. It really teaches you to sell anything. That's what first year of college. अर्ली ईयर से आपका इसका एक माइंड की मेंटालिटी में होना कि काम करना है जनरली एट दैट टाइम, बिकॉज इफ आई ऑल्सो गो बैक सो मेनी ईयर्स, वी वर लाइक यार फादर पैसे कमा रहे हैं, हमने पढ़ाई करनी है, फिर कॉलेज करना है, फिर कुछ करेंगे. बट 10th से इतना कुछ करना और समझना, it's मतलब it was always hustling. क्लास 10 में गाड़ी चलानी सीखनी थी, तो रात को चुपके से गाड़ी निकाल के चलानी. सो एक कैरेक्टर है. एंड वो पर्सनालिटी ट्रेट ही है. फिर उसके बाद कॉलेज करते करते किसी ने बोला घर बनाना है, बना देंगे. हम तो तब कुछ आता वाता था नहीं. सेकंड थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज हमने घर बनाया, हमने सारे चौखटे बना दी. 2100 हमें पढ़ाया जाता था, 2100 7 फुट. अब घर बनते बनते उनका फ्लोर लेवल 1 फुट बढ़ गया, तो हमने तो पहले चौखटे लगा दी थी.
अब घर के दरवाजे बने 6 फुट के, तब इतनी गालियां पड़ी कि तेरे को पता ही था कि दरवाजे बाद में लगाते हैं और फ्लोरिंग पहले करते हैं. So and that is where I learned कि bookish knowledge is not, and you learn something, all 5 years of college you learn something, but reality में जब थप्पड़ पड़ता है तभी सीखते हो तभी कि तभी I agree. ऐसे तो नहीं हो सकता. You will have to gauge what is right and what is wrong. Right. And so ever since we've been doing a lot of projects, and that also taught saying no, learning that people will not like everything that you do. You'll do mistakes. You will say sorry. 2-4 दिन बहुत गालियाँ पड़ेगी, then you come back to it, and that's what's important. And when did you start Chrome Design Studio? So then I joined Morphogenesis. So then what happened? Advertising agency छोड़ दिया. I used to get 50,000 rupees salary when I was 5th year of college. So I called a professor. His name was Rajat Ray. At that point of time, he was heading Shushan. And then he said कि यार तेरे को अभी पैसे चाहिए या बाद में पैसे चाहिए? So he said that you're making money, but do you really think that advertising is a long stint, or will you be able to? You've studied for 5 years, and you have a certain skill set. Why don't you use it to your stride? So then I joined Morphogenesis at 15,000 rupees salary. So So 50,000 पे छोड़ के 15,000 पे आ गए. Big. हाँ, but it was cool. I mean उस टाइम उतनी सैलरी मिलती थी इंटर्न, ये फर्स्ट ईयर फ्रेशर को, तो उसमें ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अ डिलेमा एज अ चाइल्ड मतलब Yeah, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज. यू कि यार एक अच्छी कंफर्टेबल जिंदगी है, मैंने 5 साल मेहनत करके नौकरी करी है, रीच समवेयर, एंड देन सडनली यू ड्रो बैक टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैराडाइम. तो मोफिस ज्वाइन किया, सैलरी वैलरी छोड़ो. उसके बाद पहले 3 महीने बोला सिर्फ प्रिंटर रूम में खड़े हो जाओ, प्रिंट निकालो. सो मैंने कुछ काम ही नहीं करते ये, मैं जाता था प्रिंट निकाल के लाता, दे देता, प्रिंट निकाल के लाता, दे देता. मैंने ये क्या काम है? सो आई रियली फॉट विद देम कि, एंड दिस इज 2008 जब लॉक ये रिसेशन चल रहा था, आर्किटेक्ट्स को रोज फायर कर रहे थे. right. Especially bigger firms where there was surplus people, they were firing. And it was a problem with World Bank. And then my role was taking prints. So imagine पहले 3 महीने में प्रिंट निकाला, पेशेंट सिखा दिया कि हाँ चलो ऐसे ही होता है. Then उसके बाद then I had really said कि I want to do something, and then really they nurtured me and they said कि whatever you want to do, then it was the right fit in terms of work to output ratio. Also, working in a very big firm, you learn how to manage larger than life projects, which was not seemingly relevant at that point of time. Now, after say 15 years of that, you feel that I had that kind of skill set to learn. And I worked there for 3 years. And in those 3 years, I did a lot of projects. And I was very kind of, again, because of my marketing background, I was a very good concept storyteller. And then I started doing concept designs for Morphogenesis. And that's how we became close, me, Sonali Manit, and then we did a lot of projects. But then I learned that there are two aspects of entire design build. That some people are very good at creating stories and some people are very good at executing the last mile detail. You have to choose your battles at the very beginning. You can't be a very good thinker and a very good executor. So that also led to know that yeah, this is my genre, this is where I can really kill it. फिर first task I got, someone called me कि golf course road में कोई brewery बनानी है. I thought कि ये तो best thing in my life. First task I was doing, I was तो in बना देंगे. बना देंगे. नौकरी करता था, उन्हें 50,000 रुपये एडवांस दिया. तो उस टाइम तक मेरी सैलरी होगी 35,000. मैंने कहा आ गए 2 महीने की तनख्वाह आ गई. मैं सोनाली के पास गया, सॉरी बडी, बाय बाय. उसने कहा वेट, just let it materialize, you keep doing whatever you're doing, but let your deal happen and let just go ahead. मैंने कहा नहीं, अब तो पैसे आ गए. जिस दिन नौकरी छोड़ी अगले दिन क्लाइंट भाग गया. सो उसने बोला कि सॉरी बडी, वी आर नॉट डूइंग द प्रोजेक्ट, थैंक यू वेरी मच. सब मैंने नौकरी छोड़ दी, काम भी नहीं है. तो 2-3 महीने तो बड़ी स्ट्रगल थी. तो फर्स्ट 3 months आई थिंक सो आई यूज्ड टू स्लीप अ लॉट. काम नहीं है तो देन आई रिमूव द बेड फ्रॉम माई रूम. उसमें डेस्क लगा दिया बिकॉज आई डेंट हैव एन ऑफिस. तो बेडरूम में डेस्क लगाया और मैं जाके सोफा में सोने लग गया फर्स्ट 3 months. सो दैट लेड मी नॉट टू स्लीप इन आफ्टरनून्स, क्योंकि जब कुछ काम ही नहीं होगा तुम कितना अपना पोर्टफोलियो बनाते रहोगे. तो क्या काम होता है, सुबह से शाम अपना पोर्टफोलियो बनाओ, लोगों को फ़ोन करो. Then again, because of that thing that I did in class 10 and knock doors and say no, जितने भी फ़ोन नंबर थे उस टाइम एग्जिस्टिंग मेरे कॉन्टैक्ट, सबको फ़ोन किया, कुछ काम दे दो, कुछ काम दे दो, कुछ काम दे दो.
And out of say 500 people I called, one person said, "Why don't you meet me and we'll figure it out." Then I said, "I want to do some work." Then he said, "Okay, meet my sister." And then ever since something or the other has been happening. And then so that fear of rejection कुछ है नहीं, सबको फोन करके बोलना है काम दे दो, जो काम आया बढ़िया काम आया. I don't think so. We've been very lucky with the quality of work that I've got and the kind of team that I've put together helped me in doing whatever we've done. And so ऐसे करते करते होता गया. Chrome design studio was started कब आपने start किया? This was in 2010, so अभी 15 साल हो गए. तो 2010 से Officially it was. officially, yeah, website. So for the audience, मैं आपकी अगर life जब तक जो आपने बताया, of course I'm having goosebumps understanding what you're talking. तो for the audience, at times एक mindset बड़ा important होता है. You started making money. फिर उसके बाद आपको किसी ने guide किया कि भाई आज ये कमाना है या फ्यूचर में कमाना है. Then you listen to that guy जो प्रोफेसर थे, and then you joined a company where you experience everything. फिर 3 महीने कुछ काम नहीं किया, जबकि 50,000 रुपये कमा रहे थे, उसके बाद 15,000 पे आ गए. मतलब बहुत ही चैलेंजिंग, मतलब इट्स अ माइंड सेट. यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट. आजकल की जनरेशन अगर 50,000 कमा रही है, तो अगर 48,000 भी हो जाता है तो उनके दिल को दबदब होनी शुरू हो जाती है. नॉट कि मैं ये कह रहा हूँ गलत है, बट इट इज जस्ट दैट वो पेशेंस लेवल और वो माइंड सेट्स हैव रियली चेंज्ड. So अगर कोई सुन रहा है आपको, at times you have to take a strong decision and you have to change your mindset. So you have to learn. It's an ingrained of for my father. Very funny story. 1980 की बात है. उस टाइम साउथेक्स में एक घर मिल रहा था 2 लाख रुपए का, और उस टाइम Apple II कंप्यूटर था 2 लाख रुपए का. तो उस टाइम पापा ने कंप्यूटर खरीदा. आपने पूछा क्यों, पागल हो? आज वो 20 करोड़ का होता है. मेरे पास घर तो बहुत है. आई वॉन्ट टू लर्न. आई एम एन इंजीनियर. आई वॉन्ट टू लर्न. दिस इज माई कोर. If I ever earn money, it should be for my own learning, not for wealth creation. So if your kind of funda about what money does for you is clear, you will be able to do much more because it will just take you to one level. And if that core is ingrained, that means अगर तुम्हारे जहन में बैठ गया कि यार पैसों से होना ही है, तो तुम वही पाथ या वही टास्क चूज करोगे जो तुम्हें एनरिच करेगा, rather than a certain amount of money will come and it will enrich you for some time and then go. I mean, it doesn't stay with you. Exactly. And you can't always run after it. Right. And if you're good at what you do, someone will come and say, yeah, I want your time. You will trade your time for money. So, right. So can I also add कि जो मेरा experience रहा है अभी तक कि successful people generally believe that they want to learn every day. So learning is very important. Like for me, if I get a chance, मैं PN से भी कुछ सीखने को तैयार हूँ because I'm learning. तो जब तक आप लर्न करते जा रहे हो, यू आर ग्रोइंग, यू आर इवॉल्विंग. द डे यू फील कि यार सब आ गया, अब मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, जैसे अंकल ने 2 लाख का कंप्यूटर ले लिया बिकॉज ही वांटेड टू लर्न. एंड आई एम राइट, अगर प्रॉपर्टी ली होती तो आज तो बात ही अलग थी, बट दैट वाज हिज आइडिया. that is high कि हाँ चलो ठीक है. सो इट्स अ ग्रेट लर्निंग. Also, I feel कि पैसा एक ही तरह, मतलब it has to be coming from very initial stage that what will money do for you. And it is also about security. When we grew up, financially secure hona was the first priority. Yes. When a next generation, someone is 20 right now, grows up, for him financial security is not a priority. For him कि इतना तो होना ही चाहिए. Right. So then the next generation feels कि यार ये 40 हो या 50 हो कोई फर्क नहीं पड़ता. Right. But when you really learn and earn the hard way, you value what you're getting. And you know that हाँ चलो ठीक है ऐसा हो ही जाएगा. And it's always a battle. पर आर्किटेक्ट्स थोड़े बुद्धू होते हैं, उनको पैसे कमाना नहीं आता. I am from an advertising background, so I know how to sell myself. But I know very good architects who don't know how to sell themselves. So the art of upselling yourself is also an art. I mean, it's not that everyone talent will not make money. So you have to know your worth and value, and then you say that okay fine. And when you say I want to do this house with you, you say okay fine, I want this much. You say no, I want to do this, and then go work with that person. I mean, you have to understand that इतनी value है तो अपनी खुद ही बनानी पड़ती है. सो जब आपने ये बात, बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज बहुत सारे डिजाइनर्स आर्किटेक्ट जब ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो आपने कहा कि आर्किटेक्ट को एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं है. मोस्ट ऑफ देम, Most of दे कैन 90%. सेल देमसेल्व्स. तो ऐसा क्या है कि वो अपने आप को नहीं सेल कर पाते,
जबकि इतने क्वालिफाइड टैलेंटेड हैं? क्या रीज़न है और क्या करना चाहिए? अगर यंग जनरेशन है उनको क्या फोकस करना चाहिए, यंग आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, आपके हिसाब से? दो तीन चीज़ें हैं हमारे प्रोफेशन में ना, कोई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस नहीं है। दैट मीन्स कोई रेस्टोरेंट के मैं अगर 10 लाख रुपए ले रहा हूँ, कोई 50 हज़ार रुपये ले रहा है, कोई 2 लाख रुपए ले रहा है, कोई 20 लाख रुपए, कोई 4 लाख रुपए ले रहा है। अब ये पूरा चीज़ हो रहा है टाइम के बेसिस पे। दैट मीन्स यू हैव 24 hours, योर 1 hour इज वर्थ दिस मच, और you can do something what no one can else can do, so your 1 second is worth this much. राइट। So I feel you will have to trade off between time and money, and also choose what you want to do. I mean, I'm giving my example. I have a habit of not saying no. So for most of my life I have been saying कि काम है चलो कर लेंगे, because I really feel कि कोई मेरे पास आया तो करना ही चाहिए. राइट। But I may not be right. I mean, it may be that 10 लोगों को मना कर देना चाहिए था and 20 लोगों को करना चाहिए था. So you will have to figure out that what is your time worth and where do you want to invest in it, and then how will you grow. मैं एक प्रोजेक्ट करूँगा, मेरा लॉजिक ये है कि मैं एक करूँगा उससे 4 होऊंगा, 4 से 16, 16 से 48. So it will quadruple every time I do something. He will talk to 4 people and those 4 people will talk to 16 people. And that's the reason why I never say no. But at some point of time you have to decide that where do you want to invest your time and energy, and you have to manifest it. बहुत आर्किटेक्ट सोचते नहीं है कि कैसा प्रोजेक्ट करना है. सो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे इस जॉनर में, मेरा अभी सपना है मुझे कोई एयरपोर्ट बनाना है दुनिया का सबसे अच्छा, सो आई विल कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट इट. आई विल गो टू एयरपोर्ट्स एंड फिगर आउट कि अगर मैं होता तो क्या करता, एंड देन यू मैनिफेस्ट अ प्रोजेक्ट एंड यू रीच देयर व्हेन यू थिंक अबाउट इट. अगर आप सोचोगे नहीं जो आएगा जैसा आएगा कर लेंगे, तो फिर वो ऐसी पूरी जिंदगी कट जाएगी, फिर वो ऐसे ही कटती रहेगी. एंड अ लॉट ऑफ पीपल गेट ट्रैप्ड इन देयर ओन काइंड ऑफ स्मॉलर बबल, बिकॉज आपको लग रहा है यार सब सही है. अभी क्या, मैं भी इस इंडस्ट्री से बहुत क्लोज अटैच रहा हूँ, अभी भी हूँ, तो मुझे लगता है कि जब आप शुरू करते हो तो थोड़ा सा आपकी स्टेज सर्वाइवल की होती है. आपकी स्टेज आप चूज़ नहीं कर सकते. हमारे पास भी जब शुरू में काम आता था हम चूज़ नहीं कर सकते थे कि यार नहीं मैं तो ये नहीं काम करूँगा. अभी पहले आपको अपने आप को स्टेबल करना होता है. आई एम श्योर इनिशियली जब आपको 3 महीने आप अपने लिए जो 3 महीने 5 साल 5 साल 5-6 साल तक पाँच तो छह साल जो तो आए आपने जैसे जो आए जो कर लो. स्थिति ले ली होगी. तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा कैच-22 सिचुएशन होती है कि वेयर आप मना भी नहीं कर सकते. आपको अपना सर्वाइवल भी चाहिए. अगर कोई 50,000 लाख रुपए दे रहा, कहता है यार कुछ काम तो करेंगे, कुछ नाम तो बनेगा, एक रेफरेंस मिलेगा. बिकॉज आपके काम में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरे को लगता है वो है रेफरल का. जब तक आप 5 नहीं बनाते 2 नहीं याद करते, जब तक 10 बनाते हो तो और. तो आई थिंक वो भी एक थोड़ा स्ट्रगल. I very strongly feel people catch vibes. I very strongly disconnect with that. मुझे लगता है कि आप जिन लोगों के साथ मिल रहे हो, जिनके साथ काम कर रहे हो, और उनको आप पसंद हो, चाहे आपका काम खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इंसान अच्छे हो, आपको काम मिलता रहेगा. So if even if I'm the worst architect, but I'm best human being, I will still someone like यार एक बार तो काम कर ले. एग्रीड And 100%. so people are looking for good people. People are not looking for good designers. Some designer feel over snooty and say यार मेरा काम बहुत अच्छा है तो क्या करूँ. So first and foremost you have to connect to the other person. That आप और मैं मिले, यार ये बंदा बढ़िया है, चल ठीक है, क्या ही हो जाएगा, एक बार कुछ करके देखते हैं. And then eventually people will talk good about that person and not about his work. So there's a big misnomer that work speaks. It is your personality, your persona, your vibe, your attitude that people buy. एग्री. एंड जितने वो बड़ा बबल होता रहता है उतना वो इतना इम्पोर्टेंट होता रहता है. पर ये बचपन में समझ में नहीं आता. और बचपन में लगता है कि अपने काम की फोटो लगा के दिखा दो तो बंदा काम दे देगा. उससे नहीं देगा. वो तुम्हारी कहानी, वो तुम्हारे. इफ आई हैव टू बेट ऑन अ यंग गाय, आई विल जस्ट बेट ऑन व्हाट ही इज पैशनेट अबाउट. पैशनेट अबाउट. So similarly for younger people, if the passion is not visible on your facade, not only facade, it has to come from inside. That when I talk to a person who is a junior, I can look through that person. एग्जैक्टली. So किसी से भी बात करते हैं ना, जो बंदा समझदार है उसको स्कैन करके उसका एक्सरे निकाल के बता सकता है कि ये कितना दूध है, कितना पानी है. So once you understand कि यार इसकी वाइब अच्छी है, मेहनती है, कुछ कर ही लेगा, और जो बोल रहा है सच बोल रहा है, तो बोला चल एक चांस दे देते, देखी जाएगी. एग्जैक्टली. So that's how everyone has given me chances. चाहे तो आपकी वाइब अच्छी है. सी अभी पीछे गेस्ट के साथ मेरा बात हो रहा था पॉजिटिविटी एंड वाइब के बारे में. सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम समझे कि आप जैसे हो, और मैं एनर्जीज में बहुत बिलीव करता हूँ. मैं हमेशा पॉडकास्ट में एनर्जी के बारे में बात करता हूँ कि इंटेंट और एनर्जी दोनों कोरिलेट है. आप जैसे इंटेंट और एनर्जी क्रिएट करोगे वैसे आपको लोग भी मिलेंगे. बिकॉज
ये अट्रैक्ट करते ही हैं. लाइक मैं आपको एक इवनिंग मिला, आपसे मैंने बात करी और हमने शायद इसके बारे में 2 मिनट बात करी होगी, बट मेरे को था यार अभिज्ञान को पॉडकास्ट पे आना चाहिए बिकॉज मेरी वाइब मिल गई आपके साथ. बिकॉज मुझे था कि जो आपने मेरे को 2 मिनट में जर्नी बताई अपनी, थोड़ी बहुत बात हुई, तो उस पर मुझे लगा कि ये ऑडियंस को सुननी चाहिए बिकॉज दे विल गेट इंस्पायर्ड एंड मोटिवेट. सो आई थिंक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी. आप खुद अच्छे हो, आपको लोग अच्छे मिलेंगे, आप लोगों को उस नजरिए से देखोगे और अपने आप आपकी नेगेटिविटी जो है वो या हट जाएगी. आई एम ऑल्सो बिलीवर ऑफ दैट. मुझे तो लगता है पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स और पॉजिटिव. मैं तो खुद कहता हूँ मैं काम वाम कुछ नहीं करता, और एज अ टीम नेटवर्क्स, बट आई थिंक सो. आई मीन टुडे मॉर्निंग आई हैड अ मीटिंग, वी आर डूइंग रीडूइंग इलांटे मॉल इन चंडीगढ़. तो कह रहे आप क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं ड्राइंग नहीं बनाऊंगा. मैंने कहा आपको 2 तरह के आर्किटेक्ट मिलेंगे, एक जो टाइल का जॉइंट बताएंगे, एसएस की स्ट्रिप बताएंगे, एक बोलेंगे तुम्हें करना क्या चाहिए. सो आई स्पोक माई हार्ट आउट. आई सेड कि बॉस, आई एम अ गुड आर्किटेक्ट, दैट डजंट मीन दैट आई एम वेरी गुड एट मेकिंग ड्राइंग्स. Why don't you give me what I can do? And they also caught the vibe, and then they said, okay, fine. We are working with 20 architects. We would want to explore someone who doesn't think like an architect. And I get this a lot, that you don't look like an architect, talk like an architect, because then I don't get into micro nitty-gritties of how to make sure that happens. Someone needs to think कि नई चीज़ कैसे बनेगी. So that's where the core lies. I mean, a lot of people feel architecture is only about one single idea. That means कोई एक सिंगल आइडिया होगा तो बंदा फिर उसको एलैबोरेट करके बना देगा. भाई इसमें आपका डीएनए भी है ना. आपने पैम्फलेट बांटे, आपको एक बात समझ आ गई कि नो जिसको लेना आ जाता है ना लाइफ में, तो वो काम कर लेता है. उसको पता है यार काम करना है, अच्छा करना है, मैं अपने मन से करूंगा, मुझे काम मिल जाएगा. एंड दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स एग्जांपल. सो कमिंग बैक टू योर क्रोम डिजाइन स्टूडियो. So I've understood 2010, now it's been 15 years of your working. So you are designing so many spaces. Like for example, retail store hai ya restaurants hai. Just for the audience, you are known for doing the most beautiful restaurants and retail spaces. How do you manage to have different languages for all the, मतलब कैसे थोड़ा एक कुछ 3-4 स्टेप्स बताओ फॉर द ऑडियंस, जो यंग डिजाइनर्स आखिरी जब प्रोजेक्ट लेते हैं, जब उनको 5 डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स बनाने हैं, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि इंडियन रेस्टोरेंट भी 3 एक जैसे हों, मतलब मे बी डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट ब्रांड्स. सो व्हाट इज द क्लियरली आई बैंक ऑन माई टीम. हमारे ऑफिस में 200 लोग काम कर चुके हैं. उन 200 लोगों की पर्सनैलिटीज़ को बाहर निकालना ही मेरा काम है. तभी तो मैं 200 अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकता हूँ. सो इफ आई वर्क विद अ टीम ऑफ 200 पीपल, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम their personal journey has to be reflected in the studio's work. So कोई भी एक इंसान ना कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा. So you will have to understand, people talk about collaborations with partners, with juniors. I feel collaborations is a key to variety. अगर मैं अकेला 200 रेस्टोरेंट डिज़ाइन करता तो एक पॉइंट में फटीग आ जाता. अब अगर मैं किसी के साथ काम करूँ, उसको बोलूँ यार ऐसा तू कर दे, तो फिर the approach toward works will be my thought process. When I work with someone as my team, I said, why don't you do something? I'll help you out in nurturing and again making it better, rather than I am telling you this is what you need to do. And that is what helps us create, say, different products. So उस वक्त उस इंसान की जो सेंसिबिलिटी होगी, या उसकी एजुकेशन, या उसकी इंस्पिरेशन, वो उस टाइम करेगा, एंड आई विल पुश हिम टू डू इट बेटर. That is what makes the studio's work come out. And obviously I can't run alone. I mean, I need a team of people. We have people who ex-colleagues who are working with us. So right now also we have say 50-60 people working with us. वो 50-60 लोग जब एक साथ काम करेंगे तभी हम 150 प्रोजेक्ट कर पाएंगे. अब 150 प्रोजेक्ट में सबका दिमाग लगेगा और सिर्फ मेरा नहीं लगेगा, तो फिर हम बहुत कुछ कर पाएंगे. और फिर मेरा काम क्या है कि हर प्रोजेक्ट में इनोवेशन ड्राइव करना. दैट मीन्स मेरा काम है वो सीड आइडिया क्रिएट करना, और बाकी लोगों का काम है उसको आगे डेवलप करना. Okay, interesting. that's- So team is very important. टीम इज़ वेरी You have a team of 200? ट्रस्टिंग योर टीम. दैट मीन्स जो भी तुम्हारे साथ काम कर रहा है उसको बोलो तू कर, देखी जाएगी, मैं पीछे खड़ा हुआ, गलती होगी कोई बात नहीं. This is my mantra also in the world. बिकॉज गलती तो होती है, गलती तो होनी है. और कोई भी क्लाइंट कभी खुश तो होगा नहीं कि परफेक्ट है. अब जितना तुम बड़े होते रहोगे उतनी कम गालियाँ पड़ती रहेगी, जितना तुम छोटे होगे, चाहे तुम बहुत अच्छा काम भी करो, फिर गालियाँ कम पड़ती रहेगी. So you have a team of 200 people? I have a team of 50 people. 50 people. But then I also work with my ex-associates who worked with us, who started their firms. They also have a team of 5 people.
So then we have a You have a network. collaboration. I have a network of people whom we all work with. सो अभियान वेरी इंपॉर्टेंट मेरी क्वेरी खुद की है कि आप ऑल ओवर इंडिया इंडिया से बाहर काम करते हो, हाउ डू यू प्लान कि यार ये चेन्नई में, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, किस टाइप का रेस्टोरेंट बनना है, क्या थीम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि दिल्ली की वाइब अलग है, मुंबई की वाइब अलग है, टेस्ट अलग है, किसी को काला पसंद है, किसी को लाल पसंद है, नॉर्थ में डिफरेंट कलर थीम्स चलते हैं. So how do you manage this? First is you have to travel a lot and just detach and delineate yourself from a geography. That means when I travel more than I stay in this city. So I am not from this city. So I have delineated my origin. That means आप जब साल में 200 दिन बाहर घूमोगे तो आप दिल्ली के नहीं हो सकते हो. आप एक कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक लेके आओगे एंड देन पीपल आर बाइंग दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम यू. पीपल आर बाइंग कि यार ये तो पूरी दुनिया घूमता रहता है, हमारे लिए कुछ तो कर लेगा. सो साउथ इंडियन बंदा दिल्ली पे ट्रस्ट नहीं करता, बट ही विल ट्रस्ट समवन हु इज ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड. सो व्हेन आई वर्क इन हैदराबाद एंड वी डूइंग प्रोजेक्ट्स देयर, दे हैव दिस काइंड ऑफ कंसेप्शन कि नॉर्थ इंडियन तो जो बोलते हैं कभी होता ही नहीं है. मतलब ये तो सच है. ये ये हमें बहुत प्रॉब्लम आई थी शुरू में. So When we started. Hyderabad trust issues, Bangalore trust issues है, East Indians trust North Indians, West Indians don't let North Indians. But this pan India, there is this kind of a notion of इस region का इंसान ऐसा होगा, उस region का इंसान ऐसा होगा. Exactly. And luckily we've been working, I think so, every city. Yesterday we were making a list. We've probably worked in what 65 or 70 cities in this country only. So from Ladakh, 65 to 70 cities you have already worked. या प्रोजेक्ट बन चुके हैं 65 बन चुके हैं. हाँ हाँ. सो लद्दाख से लेके गोवा, गुवाहाटी से लेके बॉम्बे, अहमदाबाद, और एवरीथिंग. मैं आज कितने प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं? हाँ अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं? अभी 1000 तो क्रॉस हो चुका है. 1000. 1000 प्रोजेक्ट्स यू हैव डन. हाँ हाँ. 1000. 15 साल भी तो हो गए. उसमें से 500 प्रोजेक्ट लास्ट 5 साल में हुए, बाकी 500 उससे पहले हुए. अनबिलीवेबल. So in terms of journey, it's been like this. So 500 project पहले 5 साल. That also because of never saying no. That means ऐसे ट्रेंड चलता है, पहले 10 साल, पहले 3 साल घर बनाया, एवरी सिंगल घर बना दे, फिर ऑफिसेज बनाया, टेक ऑफिसेज, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ, बीच में सिनेमा स्टार्ट हुए, वी डिड अ लॉट ऑफ सिनेमाज. देन नाउ वी गॉट इनटू रिटेल मॉल्स, हॉस्पिटैलिटी, लार्ज रिसोर्ट्स. सो सडनली ऐसा हर बंदा जिसको रिसोर्ट बनाना है वही फ़ोन करता है. मतलब यू देन कैच दैट वाइब. हमें नहीं पता कैसे आता है, कोई ऐसे अहमदाबाद से फ़ोन करेगा मुझे रिसोर्ट बनाना है, चलो ठीक है बना लेंगे. सो ऐसे एक ट्रेंड चलता है एंड यू विल सी दैट इन दैट 5 years यू विल डू दैट काइंड ऑफ वर्क. वाओ. सो दैट्स व्हाट्स Amazing. So, Abhigyan, tell me one thing. आपकी रूटीन क्या है? बिकॉज मुझे पता है कि यू लव ट्रैवल. आप 250 दिन साल में तो ट्रैवल ही करते हो. तो कैसे, क्या रूटीन, क्या मैनेज कैसे करते हो सारा कुछ? बस बीवी का सपोर्ट है. And more or less it's like when I have to go to a new city, I wake up at 5:36, take a flight at 8, reach that point. Although it's a waste of time, एक मीटिंग करने के लिए बहुत टाइम लगता है. And then I try and do 3-4 works in that city. So if I go to Hyderabad, I'll have managed 3-4 clients. And typically I try and come back that night ताकि मेरा अगले दिन वेस्ट ना हो. Then I take a 10 o'clock in the night and reach Delhi about 12 o'clock, reach home at about 3 o'clock. So मेरा ऐसे 20 घंटे का काम होता है रेगुलरली. अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है about 10-10:30 and I work till about 7:38. At times it 9-10 भी हो जाता है. So I try and cover, because I travel a lot, I have to cover a lot in Delhi. So I keep on doing multiple meetings. And intense है पर मज़ा आता है. मतलब when you go out again, if I'm staying that night, I'll see 5-6 places, understand, meet people, make friends locally. And it's been quite enriching. जब इतने लोगों से मिलता हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो टेल मी वन थिंग. जैसे आप प्रोजेक्ट्स 15 साल से कर रहे हो, तो बजट्स भी क्लाइंट्स के चेंज हुए होंगे. एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, क्योंकि रेस्टोरेंट्स भी अब इंडस्ट्री की तरह बन गए हैं और कॉम्पिटिटिव भी बहुत है. तो क्या चेंज आया है? हर तरह के लोग होते हैं. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आई हैव सीन पीपल स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, then also, now also. Some people, it's about mindset. So when someone comes to you, they say हमारा ये बिजनेस है, मुझे एक पिज्ज़ा की दुकान बनानी है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मुझे हर महीने इतने पैसे कमाने हैं. वील हैव टू फाइंड टेलर मेक अ सोल्यूशन. आई कांट से कि छोड़ यार तेरे से होगा नहीं, मिनिमम 3 करोड़ रुपए लेके आ,
या मैं बोलूँगा कि यार तुम्हारा बजट मैच नहीं करता. So the client doesn't know how much money he needs to spend. As a business owner, मतलब I go into his shoes and then I make sure that the client is educated कि जो काम आप करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, उसमें इतना खर्चा तो होगा ही. उसके बाद आपको इतना टाइम लगेगा उसको एस्टैब्लिश करने में, उसके बाद आप पैसे कमाओगे. तो दे कम टू अस बिकॉज वी ब्रिंगिंग दैट ओवरसाइट कि यार इतने बना चुके हैं, तो हमें ये पता है कि आप बोलोगे मुझे बार बनाना है, मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे चलेगा ही नहीं, रेस्टोरेंट बना. आई मीन आई हैव टू रियली गाइड यू इन द राइट मैनर. कोई बोलेगा यार मेरे को चंडीगढ़ में बार बनाना है, मैं बोलूँगा यहाँ पे बहुत लाइसेंस की दिक्कत है, अब मोहाली में बनाओ. जो आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाएगी, पर आपको पता ही नहीं है कि ये आपके डेमोग्राफिक्स में ये सब चीज़ें हो रही है. एंड सो दैट्स हाउ. एंड कोई बोलेगा गोवा में 6 महीने प्रोजेक्ट बनाने में, बोलूँगा 2 साल लगेंगे, क्योंकि गोवा में 6 महीने बन नहीं सकता. आप कोशिश करोगे, मैं तो कर चुका हूँ, हो नहीं पाया. सो Right. you will also have to create the right framework of things and then make them create that money, because if you want to do a project, there's something which is called optimum. You need that optimum value to create it. Right. Right. The Nice. restaurants may, it's very important because you have to become their business advisors and make sure that eventually हमारे साथ काम पता है क्यों करते हैं लोग, वो सक्सेसफुल होता है. The reason why someone will recommend me, कोई पिटे हुए रेस्टोरेंट का आर्किटेक्ट का नाम नहीं ये होता. मेरा भी क्वेश्चन आने वाला था आपको. So कुछ लोग बोलते थे कि किस्मत अच्छी है, so you get in that right kind of a vibe so that हमने काम किया, You हिट हो believe गया. in this? I believe very strongly. कोई कहता है कि किस्मत अच्छी है, हाँ हाँ, किस्मत अच्छी है. मेरी अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है. but मेहनत भी है, ऐसी बात नहीं. एज इन दूसरों के लिए डेफिनेटली है, बिकॉज जो भी हमने रेस्टोरेंट बनाए वो चले, 100 बनाए 90 चले, पर बहुत लोग हैं कि 100 बनाए 80 डूब गए, तो उनको आगे कोई रेकमेंड नहीं करेगा. सो यू वुड ऑलवेज वांट टू बी एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स. You're the lucky mascot. Lucky and hardworking and Of course. we formulate the right formula. So अगर मुझे कोई भुवनेश्वर में प्रोजेक्ट बनाने को बोले, पहले तो मैं अपनी लर्निंग लेके आऊँगा कि भुवनेश्वर में ये चीज़ चलेगी, और जब वो उतना पैसा कमाएगा तो उसके आसपास जितने भी लोग होंगे जिनको रेस्टोरेंट खोलने हैं, और ढूंढेंगे पहले कि कौन था आर्किटेक्ट. तब वो दिल्ली वाले को फ़ोन करके बोलेगा यार व्हाई डोंट यू वर्क ऑन विद मी. चलो एटलीस्ट आपने एक ट्रेंड तो चेंज किया कि अब लोग ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली हाँ. वालों को ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है, और दिल्ली वाले डिलीवर कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स. तो ऑडियंस, Delhi is a great city. Trust the people. Things have changed Yeah. over the years. पहले अलग चीज थी. When I started 2002-4 में, बॉम्बे वाले दिल्ली का नाम नहीं करना काम. अब things have really changed. I think last 8-10 years the new generation has come. Things have changed, organized. बहुत फर्क आ गया है. बट अभी क्या एक माइंड में बात चल रही है, इतने सालों से आप रेस्टोरेंट्स कर रहे हो, कभी आपका खुद नहीं मन किया यार कि मैं भी एक अपना रेस्टोरेंट खोल लूँ? हाँ मैंने बनाया. बनाया आपने? हाँ हाँ, मैंने गोवा में जाके एक रेस्टोरेंट बनाया, पैन एशियन रेस्टोरेंट. आई हैड अ पार्टनर and I ran it. I tried to run it, but I don't think so I'm meant for it. That means चाहे आप जितने भी हजारों बना चुके हो, अपने में it doesn't work like that. And it's a lot of work. It's like कि थोड़ा डार्क साइड बताओ रेस्टोरेंट्स का, बिकॉज बहुत सारे ऑडियंस हैं, उनको ना रेस्टोरेंट लाइन बहुत ग्लैमर लगती है. उनको लगता है यार रेस्टोरेंट खोल दोगे ये आएगा, लोग आएंगे, थोड़ा सा ना खड़े होके चलाना पड़ता है, and it's not always that easy. And the problems are pettier, and the issues, for example, किचन टीम ने अंडे चावल के अंदर छुपा लिया और सर्विस टीम को नहीं दिया, और उनको सिर्फ खाली चावल और दाल मिल गया. आई सेड मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो इन सब चीज़ों के लिए? आई एम नॉट सपोज टू नो ऑल ऑफ दिस. Restaurant is all about getting to know about those smaller nuances and solving it, and on a daily basis, and creating that connection. So I feel if you're not physically there, remote control सब नहीं चलता. Even if you set all the formulas right, you'll have to constantly be there. And secondly, location is the key. If your location is great, अब मैंने समुंदर पे नहीं खोला, मुझे लगा क्या फ़र्क पड़ता, मैं तो कुछ भी चीज़ बढ़िया बना दूंगा, पर आई थॉट अगर यही चीज़ समुंदर के ऊपर होती तो गेम चेंज हो जाता. So it's also about timing, location, and the right team put together. Whom are you working with? What are you doing? ओके. तो ऐसा नहीं है कि हर रेस्टोरेंट हर जगह पे हिट हो जाएगा. राइट. दैट्स इंटरेस्टिंग. सो इफ आई आस्क यू, आपके क्लाइंट्स आपके रिपीट, जस्ट फॉर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, अगर 3-4 मंत्रा हैं तो वापस क्यों आते हैं? व्हाई यू हैव रिपीट क्लाइंट्स?
बस बढ़िया बंदा है, पैसों के लिए चूचू नहीं करता। पैसे के लिए चुनचु नहीं करता। अगर सोचो मैं सबसे बोलूँ पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो Okay. हर बंदा, आई ऑल्सो गेट आपको लगता नहीं, you're being very humble right now by saying all this? पैसे तो मिल जाते हैं obviously, but नहीं, you नहीं know, भी it's मिलते a तो lot of कोई, hard नहीं work भी and मिलते तो lot कोई of बात नहीं। guidance. I think Someone said one point of time, delineate yourself, your practice with money, that get someone else to understand how your money comes in and goes out. That was the game changer for me. अगर मैं अपने क्लाइंट से बोलता यार इतने पैसे दे दो, आपका ये पेंडिंग है, तो उसको भी बुरा लगता, मुझे भी बुरा लगता। मैं कभी काम ही नहीं करता। अब आज की डेट में मुझे पता ही नहीं कि कौन से प्रोजेक्ट में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितने आ रहे, कितने नहीं गए। और मेरा काम है सिर्फ काम करना, पैसे पीछे से आ जाएंगे। आई शुड अंडरस्टैंड कि एक साल के बाद क्या हुआ, rather than daily kind of analytics of what has come and what has gone. If I left that, I would be a much more happier creative person, and then I'll be able to do business much better if I keep on knowing कि यार इसके इतने रह गए तो उससे बात ही नहीं करूँगा। So that I've leveraged myself out of it, and there's a plus and minus of it. Minus is I don't know how much money I have. I don't know किसने मुझे पैसे दिया है. Someone else knows that. I don't want to know. I've realized if I don't know, I am much more happier, better. better. And then annually I want to know कि इस साल बढ़िया है, डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है. The turnover of the company has to increase annually. Obviously 50 आदमियों की सैलरी देनी है, But if you work if करना you get down to every single person pinpointing what has happened at that point of time, and his framework of mind and your framework of mind doesn't match, then you won't be able to work. एंड ऑल्सो आई थिंक ये तो एक फैक्टर है कि चलो यू हैव अ टीम जो ये चेस कर रही है पेमेंट्स एंड ऑल, बट आई थिंक जो मेरे को आपसे बात करके समझ आई है कि यू हैव ऑल्सो बीन अ गाइड टू अ क्लाइंट। तो एक गाइड होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब जैसे मैं पैसे लगा रहा हूँ और कोई मेरे को आके समझा दे कि सीजे भाई इतने पैसे नहीं लगा, पैसे डूबेंगे, तो वो रिस्पेक्ट उसकी बहुत ऊपर चली जाती है, बिकॉज वो एक जेन्युइन फीडबैक मिल जाता है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप यू बीइंग वेरी हम्बल राइट नाउ, बट And clients also understand. I mean, there are clearly two kinds of architect: one who takes commission and one who doesn't take commission. There's no harm in talking loudly about it. yes, So what I've made sure that in my philosophy of working, I said मुझे फीस दे दो, मैं सामने से पैसे लूंगा, मैं पीछे से पैसे लेने का मुझे कोई शौक नहीं है। अगर कोई 10 रुपए की चीज़ है, मेरे को आप अंडर पे कर रहे हो, 2 रुपए ले रहे हो, तो मुझे तो पैसे कमाने ही पड़ेंगे ना। एवरीवन वांट्स टू मेक मनी। नाउ सम पीपल फेल के हम पत्थर में लगा देंगे, आर्किटेक्ट को क्यों दे? एंड इट्स अ माइंडसेट। आई फील इट्स बोथ फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड द आर्किटेक्ट साइड। क्लाइंट बोलेगा 2,000 रुपये का इटालियन मार्बल लगा लूंगा, पर 2 लाख रुपए का फीस नहीं दूंगा। उन्होंने सोचा यही स्ट्रक्चर है। एंड आई फील ओवर द years people have now realized कि इससे अच्छा you spend more on design and consulting, spend less on materials. And once the mindset change, people will value professionals more. आई थिंक वो थोड़ा बहुत चेंज अब आना शुरू हो It started happening Started and people have understood कि यार पैसों पे, मतलब इंसान पे पैसा लगाओ ना, मटेरियल पे कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली, And that person, if that integrity is there, you will get a lot of work and people will vouch for you. राइट राइट, So it is very important for the community to also understand that we made this community. We are saying, जैसे lawyers का एक fear है कि यार ये तो हमें खा जाएगा, you don't know what is right and wrong, but it is the community that builds that impression together. If the community says भाई it's a noble profession, it will happen for sure, it will happen for sure. System ही खत्म कर दो। Client also will say कि यार इतनी फीस देनी चाहिए। राइट राइट। तो अब जैसे आपने चंडीगढ़ में बोला कि मैं तो बनाऊंगा नहीं, मेरा अपना कोई विजन है उसके लिए, तो अब एआई के लिए ये एक मेरा मैंडेट क्वेश्चन है, बिकॉज आजकल एआई इज द फ्यूचर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एआई? AI can help you imagine but not can't help you execute. That means सपने बुन के सामने वाले को दिखाना is a tool which is now easy. That means कोई मुझे बोलेगा मुझे नहीं पता, you have to give me a brief, मैं बोलूँगा let me write down what's your thoughts and then I'll show you a photo. ऐसा कुछ चाहिए? Then I'll say अच्छा yes. So it becomes easier for me to talk to you through a graphical medium. राइट, It also helps us leverage in terms of donkey labor. That means if I have to write a specification for a tender, I thought कि यार चलो ठीक है इसको डाल देते हैं चैट जीपीटी में, ये स्ट्रक्चर है इसका, डिटेल्ड BOQ स्पेसिफिकेशन बना दो, वो बना के आपको दे देगा, जो 4 लोगों को फ़ोन करके करना पड़ता था या अलग अलग प्रोजेक्ट से रेफरेंस बहुत ही करना अच्छा वर्ड यूज़ किया आपने, डोंकी लेबर। आई थिंक बिकॉज मैं भी चैट जीपीटी बहुत यूज़ कर रहा हूँ आजकल, एंड मेरा टाइम जो इतना बचा है कि जो चीज़ें बनानी है, नॉलेज है, इवन यू नो मतलब इट इज़ अ गेम चेंजर
एंड आपका माइंड जो है ना उसी टाइम सेटल हो जाता है, आप उसमें डालो, चीजें मिलती हैं और आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हो। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड वर्ड कि So, डोंकी लेबर तो बचती बचती। वो रिप्लेस हो जाएगा और फिर बंदा थोड़ा और एफिशिएंट हो जाएगा, एफिशिएंट होगा, देन विल गेट मोर टाइम टू डू फन स्टफ प्लस। बट जो भी बोलो, एक बार दिस इज स्टार्टिंग ऑफ मिड जर्नी एंड एवरीथिंग, समवन केम टू मी कि यार मुझे एक एआई बेस्ड रेस्टोरेंट बना के दो। तो हमने मिड जर्नी के रेंडर बनाए, हमने उसको दिखाया, वो बड़ा खुश हो गया। फिर उसने कहा चलो ठीक है बना दो। हमने कहा बनाएगा कौन? उसकी ड्राइंग कौन बनाएगा? फिर हमने मथुरा में एक स्कल्पटर पकड़ा कि यार ये सब चीज़ें तो 3D में बड़ा अच्छा लगता है, तो बनाएगा बना कौन? देगा। देन उसने एक्चुअली बनाया, सो वी एक्चुअली मॉडल्ड द एंटायर स्पेस एंड देन वी गॉट समवन टू बिल्ड इट। कि यार इंटरनेट पे फोटोज तो बड़ी देखी है, रियलिटी में कैसा लगेगा? एंड देन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दोज विजुअल्स। देन इवेंचुअली वी रियलाइज की जरूरत ही नहीं थी, इससे अच्छा तो हम पहले ही ठीक थे, डबल कॉस्ट क्यों करें फालतू में? राइट राइट राइट। But it's just that it's a notional thing. AI is machine learning. तो जो, and I'll tell you a problem, जो मशीन ने देखा है वही आपको दिखाएगा. So for creative thinkers, you want to think what has not been imagined. But if you write a prompt and create something, it is somewhere from this world. You will marry a horse and a dog, but you will not figure out a new species altogether. So you'll get a photo of a horse and a photo of a dog morphed together, but you will not be able to imagine a new animal. So at times it becomes deterrent because आपको हमेशा लगता है कि precedence, AI is working on precedence. That means कोई चीज़ हो चुकी है, AI इसको analyze करके आपको एक output देगा. राइट As designers we work beyond precedence. That means जो चीज़ नहीं हुई है वो सोचना है. उसके लिए तो आपके दिमाग में ही है वो, और उसको जितना आप ट्रेन करोगे प्रॉम्प्ट करके आउटपुट निकालने का, वो प्रॉम्प्ट करके वही चीज़ निकालेगा जो उसने देखी हुई है. राइट So that's the difference. राइट। You will have to figure out how to beat it and use it as a tool rather than a generator. राइट आई एग्री। कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बताओ अपना ऑडियंस को। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, आपने 1000 प्रोजेक्ट्स करे हैं, उसमें से द मोस्ट इंटरेस्टिंग। जैसे एक हमने साइबर हब में सोशल बनाया हुआ है, आज से 8 साल या 10 साल हो गए अब. एंड सो वी थॉट दैट लेट्स मेक अ चॉल. सो चॉल, so Gurgaon is a city of immigrants and Bombay was that in 1940s and 50s. And so we thought कि यार हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने ग्लास की बिल्डिंग बना तो दी पर ऐसा होना नहीं चाहिए, तो हमने बोला कि हम बॉम्बे के चौल को ग्लास की बिल्डिंग में घुसाते हैं. सो वी ओवरलेड वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन and we designed a restaurant that was like a immigrant colony, and there were rooms into it, there were balconies, there were कपड़े सूखे हुए थे. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली फिर जो लिकर लाइसेंस देने आई लेडी, उसने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ अलग ही सीन लग रहा है, आपने कमरे 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 बनाए हुए. फिर डीएलएफ आया, हमने ऐसे अंडरवेयर ब्रा सब टांग दिए थे, उन्होंने बोला ये हटाओ, ये हमारी इज्जत कम हो गई. सो इट वाज अ वेरी प्रोवोकेटिव आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट. इट स्टिल एग्जिस्ट. 8 साल हो गए, गोरे लोगों को बहुत पसंद है, जापानीज पीपल लव वर्किंग. आई बीन टू सोशल, मेरे ख्याल से जब मैं पहली बार गया था, जस्ट टू गिव माई इंप्रेशन, इट वाज वाओ, बिकॉज आप एक रेगुलर स्टीरियोटाइप पर ईट, तो इट वाज डिफरेंट, मतलब उसमें आपके स्टेप्स बने हुए हैं और एंड द फूड इज, झूले लगे हुए हैं, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. So we try and break a notion of a restaurant. Similarly, we've done something called Oya in Bangalore, which is a 1 lakh square foot restaurant, which is like multi-level. 1 lakh square foot. Yeah, it's the biggest in this country, and it's got levels. It's got a lake. How much time did it take to? What, 4 years, 3.5 years. 3 or 4 years. So लगता है अच्छा प्रोजेक्ट बनने में 2-3 साल लग जाता है. पर 1 लाख फुट का रेस्टोरेंट को बनाने और चलाने में बड़ी मेहनत है. And we've been doing this for very long. So people come to us for that kind of a stride कि यार architecture plus interior plus hospitality की understanding helps us create new things. Nice. So before we start our rapid fire, एक स्टोरी बता दो कि आप ऑडियंस को, कि आप एक बारी ऑटो में भी सोए हो रात को, हाँ हाँ. तो उसके बारे में बताओ ऑडियंस को कि Again, all credits to my father. So class 9th की बात है, not even 10th, class 9th में he was going to भिलवाड़ा for a office assignment. मैंने कहा मैं भी चलूँगा. So मैं गया उनके साथ भिलवाड़ा, and then ऐसे उन्होंने बोला कि रास्ते में चित्तौड़, उदयपुर सब कुछ है, why don't you go there? I said I would love to. Then he gave me $1,000, and I took a bus from भिलवाड़ा to चित्तौड़. सुबह से शाम बहुत घूमा, फिर उदयपुर पहुंचा, उदयपुर में बहुत घूमा, रात तक ख़त्म हो गए 1000 रुपये. मैंने पापा को फ़ोन किया कि पिक कर लो, ये गाड़ी भेज दो, कुछ तो करो, मेरे पास पैसे नहीं होने का. कि नहीं भाई कल ही आएगा.
बस के पैसे है? मैंने कहा हाँ बस के पैसे है, आई थिंक सो है 40-50 रुपीज़। सो फिर जिस ऑटो ने सुबह से मुझे घुमाया उसको बोला मैं ऑटो में ही सो जाता हूँ, कल सुबह जाना पड़ेगा, बिकॉज आई एग्जॉस्टेड व्हाट आई वाज गिवन। दैट रियली टॉट मी। उस टाइम तक मुझे लाइफ में कोई फंडा अबाउट मनी था ही नहीं कि होना तो चाहिए ही, इतना तो खाने पीने के पैसे तो होने ही चाहिए। बट दैट काइंड ऑफ वन डे रियली टॉट मी। राशन बोल के एक चीज होती थी ना, कि राशन कैसे करना है, दैट हाउ टू स्पेंड मेटिकुलसली टू मेक श्योर दैट यू रीच द लास्ट माइल is also very important. So and then next day morning then he said okay fine I'll side then pick you up. तो फिर उनको था कि ये भाई ड्रिल एक कर दिया बेटे को, एक रात को रह लिया, इसको समझ आ गई एक जिंदगी। रात तो बनता था। एंड ठीक है, अगले उसके बाद से मैं सीखा कि हाउ टू मेक श्योर दैट you reach the last mile and you figure out how what needs to be done. ये पॉडकास्ट मैं अपने बच्चों को जरूर दिखाऊंगा, हाँ उनको बोलूंगा तुम बिफोर यू कंप्लेन लिसन द जर्नी ऑफ पीपल व्हाट दे हैव डन एंड हाउ दे हैव बिकम सक्सेसफुल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को पता तो चले। इनको तो एयर कंडीशन बसेस, एयर कंडीशन स्कूल्स, और उसके बाद भी वाइनिंग। मैंने कहा वाइनिंग मत करना, तुम्हें पता ही नहीं जिंदगी में क्या हो रहा है, लोगों के साथ लोगों ने क्या देखा है। मैंने यू गाइस शुड हैव अ ग्रेटिट्यूड। सो ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट जनरेशन। I feel both ends of the spectrum is important. You need to understand what is there and what is here and where do you stand in between. That means आपको अगर पता ही नहीं होगा कि कोई 22 साल का लड़का मिलियनेयर कैसे बनता है and value of 100 rupees, you need to be somewhere in between. You can't be delusional about your standing in this entire thing. And then you need to have a strategy. मुझे तो बहुत एक किसने बताया था, वेर एवर यू रीच यू विल गेट इट। दैट मीन्स इफ यू गो टू Monaco on an F1 race, one day you will probably have a team, but you have to reach there. So you have to figure out how and where you can reach and make a plan to be there. For example, आपको न्यूयॉर्क में पेंट हाउस खरीदना है तो एक बार जाके उसमें रहो तो सही, राइट। फोटो मत देखो, उस पेंट हाउस में जाके रहो, फिर कभी ना कभी लाइफ में वो सच हो जाएगी। वाह। So whenever, whatever you feel or Feel the think, you reach there and you be there in your own capacity, it will happen for sure. So feel the vibe. Yeah. तभी you are traveling 250 days in 365 days. Yeah. You want to be whatever you want to be there. हाँ मतलब कुछ मिस नहीं होना कुछ मिस नहीं करना चाहते। नहीं, it's very nice and I know travel is your passion. So let's start our rapid fire. Simple question, simple answers. Rapid fire तो नाम का है, लोग rapid fire में ही बड़ा कुछ सोचते हैं, but I think you being a hustler, you will be able to answer fast. So one word that describe अभिज्ञान नेगी. hustler. Choose collecting alcohol bottles or sneakers. Alcohol bottles. Alcohol bottles, clear है? How many boarding passes you have? I've thrown all of them, but I have traveled 400 boarding passes in a year average. 400-500 एक साल में इकट्ठा हो जाती है। 400-500 हो जाते हैं एक साल में। 400-500, माय गॉड। ट्रैवल और ऑफिस मीटिंग? Travel. ट्रैवल फॉर श्योर। ओवर यूज्ड वर्ड इन द डिजाइन वर्ल्ड? Sustainability. ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मेरा कॉलेज का प्रोफेसर था ए बी लाल, उसने कहा जब तुम बनाओगे ही नहीं तो लाने की जरूरत क्या होगी, तुम मत बनाओ ना बिल्डिंग बनाओ फिर उसको सस्टेनेबल बनाओ, क्या फायदा। What's your guilty pleasure after a long tiring day? I mean, I like partying, I like enjoying my life, so going out, drinking, meeting people. So night owl or early bird? Night owl. Night owl for sure. Early bird also. Early I bird mean, also. it's both. Both? I wake up at 5 o'clock whenever I have to reach wherever I have to reach. One word your team would describe you? Tyrant, मतलब very demanding. Demanding? अगर आप एक deserted island में हो और आपको कौन से 3 डिजाइन टूल्स लेके जाओगे? डिजाइन टूल्स का क्या करूँगा आइलैंड में? Deserted सर्वाइवल island में सर्वाइवल टूल्स, सर्वाइवल बता दो। खाना, दारू, पानी। खाना, दारू, पानी। Your dream client? Dream client is someone who knows what he wants. मतलब it's very important to have someone with a set of vision that comes to you. यार मुझे ऐसा कुछ कर दे, then you can help him achieve it. I'm my worst client. मैं अपना घर नहीं बना पाता। पर अभी तो आप गोवा में बना रहे हो। बना तो हम रहे ही है, पर वो वैसा नहीं होता जैसे तुम्हें चाहिए। जैसे नहीं चाहिए। You're demanding ना, इसलिए ऐसा होता है। और ड्रीम प्रोजेक्ट? Dream project, I'm saying airport. I want to Airport do you an want to airport. design airport, huh? Airport is your dream. Public airport जो So audience, anyone who wants or have a connection
at the airports. Please, अभिज्ञान का ड्रीम को पूरा करो और चलो, एयरपोर्ट बढ़िया मिले। है। और आई थिंक कभी ना जो कभी हमने तो हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन की बात करी, हो सकता है इस पॉडकास्ट की मैनिफेस्टेशन के बाद हाँ आपको हाँ, एयरपोर्ट का काम मिले और मुझे फोन जरूर करना जरूर, सीधे, भाई मिल गया अब एयरपोर्ट का काम। कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। हाँ, हो ही जाएगा। अब इन शॉर्ट योर रीजन ऑफ सक्सेस। Persistence, everyday hard work. So I had seen like one podcast or one interview कि सलमान खान रोज 4 घंटे दिन में काम करता है। आज की बात नहीं है, दिस इज व्हेन आई वाज इन स्कूल और कॉलेज। वो चीज़ दिमाग में बैठ गई कि दिन हर रोज 4 घंटे काम करना है, 10 नहीं 12 नहीं, पर 4 घंटे डेडिकेटेडली हर रोज काम करना है, चाहे संडे हो या मंडे हो या हॉलीडे हो या 31st हो या फर्स्ट हो। एंड इफ यू build that in your kind of DNA, then you will never fail. Interesting. So, Abhigyan, towards the last leg of this podcast, what is your genuine suggestion, being a hustler from the beginning, to the young audience, young architects, somebody who's working, wants to start their own practice, or somebody who's already running a practice for a long time, feels कि यार मैं successful नहीं हो रहा, or sometimes you have this feeling. तो अपनी experience के हिसाब से थोड़ा सा अपनी वैल्यू खुद बनाओ, अपना सेटिस्फैक्शन लेवल हर इंसान को डिफाइन करना चाहिए। किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, बट यू शुड नो। आई मीन दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक 10 lakh rupees a month and still I'm happy, if I make 5 crore rupees a month still I'm not happy, you will have to define what are those parameters that will give you happiness. For me, none of these. If I'm making this project, if I've created this meeting today, if I could express myself, that is my parameter of happiness. And don't be shy to say no. That means very important thing, architects are not able to communicate and say no कि यार इतने पैसे नहीं दोगे मैं नहीं काम करूँगा। बोलता अच्छा अच्छा ठीक है, 5 ले 4, ओके, मना कर दो, नहीं करना, कोई ना कोई तो आएगा तुम्हारी वैल्यू करने। पर हमारी दिक्कत है, हम बोलते हैं यार चलो कोई बात नहीं यार, इतना दे दो, कोई तो दे रहा है। So you have to say no to build your value. And young designers should understand that it will happen with time. It took 15 years for me to be so confidently talking to you. 5 years down my practice, I got divorced because I was not making that amount of money. It takes time. It takes a lot of hard work, a lot of strain, a lot of everything. It just drains you out completely. But keep on doing it every day, every day, every day, every day. You will reach where you have to reach. But at that point of time, you have to trust the process कि यार कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। सबका अलग अलग टाइमलाइन होता है। मतलब मैं तो 18 साल से हासिल कर रहा हूँ, आज मैं 40 साल का हूँ, तो मेरे को 22 साल हो गए कुछ कुछ करते हुए, चाहे लीफलेट बेचूँ, चाहे कुछ भी करूँ, चाहे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में करूँ। And still maybe someone who's 25 is far ahead than I am, but I am happy with my journey. I have learned in these 22 years, and I'm willing to spend the next 50 years also of my life doing something that I'm really passionate about. So you have to know what are you working towards, what is your passion, what is your end goal, कर क्यों रहे हो, और उसका रीजन की वजह से you will start working hard and doing what you do. You feel you're successful? No, not at all. Not I at am there. I am doing what I have to do. I have the means to achieve what I want in life. Whenever I get something, I raise the bar higher. That means if I have this, I want that, I want that. So I always have a push to do. Now you have to work hard towards Why it. you think you're not successful? आपने 1000 The restaurant बना definition दिए। is different. What is your Successful definition of success? for me, it's happiness. For me, it's being content. So most successful person इसको कुछ नहीं चाहिए कि आज मैं ये किताब पढ़ूंगा और कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। डेफिनेटली सक्सेसफुल मतलब फोन नहीं बजेगा तुम्हारा, कोई और फोन उठाएगा। So वो आपके लिए सक्सेस है? हाँ, मेरे लिए तो टाइम इज सक्सेस, जिसमें आप 24 So घंटे अभी वो आपको नहीं मिल रही है? जब मेरे को अपने 24 घंटे पूरे मेरे लिए मिलेंगे तब देन आई एम सक्सेसफुल। अभी वो नहीं। तो आप पे डिपेंड करता है। नहीं एक्चुअली आप अगर आपको हंगर ज़्यादा है, एम्बिशन ज़्यादा है, आप अपना रेस बार करते रहोगे तो वो तो दिन शायद कभी आएगा नहीं। that's what I'm saying, the balance between satisfaction and drive is very important. Balance between satisfaction And drive, Yes. that means मैं रोज जॉइंट पीता हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरी लाइफ की ड्राइव खत्म हो गई है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। And someone is always being driven, but whatever he gets he's always unhappy. So that मतलब he's super driven, मतलब सब खरीद लिया, Mercedes, Ferrari, BMW सब खरीद लिया, पर वो कभी भी खुश नहीं है। वो बोलेगा यार मैं तो खुश नहीं हूँ, मुझे तो वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए।
So there's somewhere you will have to figure out कि you have to be driven, but you have to be satisfied also at the same point of time. It's like an equilibrium uh, of these two things. That is where you will be at a state कि हाँ चलो ठीक है, float कर रहे हैं. फ्लोट कर. बट एक लास्ट थिंग अभी आज मुझे लगता है कि दिस इज ऑफ द टॉपिक, बट आई पर्सनली फील, जो मैं अपनी मोटिवेशनल वीडियोस में भी बोलना चाहता हूँ कि ग्रेटिट्यूड खत्म हो गया. आई थिंक पीपल ऑल्सो आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे आर नॉट, अब ग्रेटिट्यूड है ही नहीं. मतलब जो चीज़ें मिली हुई हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, ये तो मेरा हक है. बट ये देखो ना, जो हक मिला है उसके लिए भी शुक्राना तो करो. वो शुक्राना खत्म हो चुका है, जो मेरे को लगता है. दिस इज माई फीलिंग विद नथिंग to say for anyone, but people have stopped being thankful. Reference point change होता गया. For example, anyone who's traveled in a bus to college will understand the value of Mercedes. ठीक है, तो you will say thankful to this situation. All that I am saying is not for everyone. I feel we thank a lot in our mind. We don't talk about it. So a lot of people are very content and happy. Some people are able to say the other person, yeah, thank you very much for what you've done. And you should be all out. And I mean, for anyone who is listening or who wants to do it, at least if you feel it, बोल दो. मन में मत रखो. अगर कोई चीज़ बंदा पसंद है, बोलो यार बढ़िया इंसान, आज अच्छे लग रहे हो, शर्ट बड़ी अच्छी है. दिमाग में मत रखो. जब आप बोल देते हो ना, तब आप धीरे धीरे वैसे इंसान बन जाते हो. Right. एंड वंस यू से इट आउट ऑफ योर हार्ट, यू रियली फील. वंस यू से इट, मतलब एक होता है सोचा पर बोला नहीं. आई लाइक योर वॉच. And some people will really talk it out. And as Indians, I feel we are very reserved in communication. We don't talk everything that's in our head. Yes. क्योंकि हमें कंडीशन वैसे किया गया है कि यार कम ही बात करो तो बेटर है. हाँ, ज़्यादा बोलने में नजर पता लग है जाएगी, मुंह फट लग जाओगे, मुंह फट लग जाएगी, नजर लग जाती जाएगी, है, ये पता तो नहीं क्या हो right, जाएगा, अपने right, बारे में मत बताओ किसी को. right, right, right. पर है, मतलब मन से लोग बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, पर बोल नहीं पाते मुंह बोल नहीं जबान जबान. बट मेरे को ये लगता है कि जो आपके पास है भी, उसको भी शुक्र, अपने आप को भी थैंक यू नहीं बोलते. मतलब दैट हाँ इज जी. व्हाट आई एम सेइंग कि आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ ग्रेटिट्यूड. एज आई सेड, आई एम पॉजिटिविटी, इंटेंट, ग्रेटिट्यूड. दीज आर वेरी नॉर्मल फार्मूला फॉर मी टू बी हैप्पी इन लाइफ. एंड मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आई रिक्वेस्ट पीपल कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, thank God कि what you have, because most of the people, if you see, I'm not asking कि उनको देखें, but उनको ये लगना चाहिए कि यार God is very kind. मतलब इससे शुक्राना बहुत है. मतलब Also, I'd heard something about not only getting, also giving. That means I give you money and say thank you for taking my money. That is even better gratitude. That means एक तो ले रहे हो तो thank you बोल रहे हो, एक तो दे रहे हो तो thank you बोल रहे हो कि ले लिया आपने सर. ये भी आज तक मैंने सुना नहीं किसी को करते हुए. So But Japan में whenever you give a cashier the money, you be gratified that yes, thank you for accepting my money. That means you say thank you for giving also, not just taking. right. And you have to understand giving and taking में doesn't matter. It's a transaction. You should say thank you for everything. Two people, कोई accept लेने के लिए, कोई देने के लिए, दोनों thank you बोलेंगे तभी तो transaction पूरा होगा. अब कोई welcome नहीं बोलता. We'll also realize this. हमारे भारत में कोई welcome, कोई gratitude को accept नहीं करता. That Exactly. means if I say thank you, CJ will say thank you. yeah. You will never say welcome. I Welcome. accept your thanks. Yes, So yes. I feel way we talk, way we communicate talks a lot about us. And if I am able to accept and give, Right. that means I have to be willingly accepting thanks, apologies, whatever. Yeah. And then you say welcome, you are welcomed. I've rarely heard someone say that. Yeah, I agree with you. बचपन में स्कूल में से गया था, उसके बाद बस किसी ने सब बोल दिया. प्रैक्टिकली थैंक यू. Thank you. So वो थैंक यू चल रहा है, अभी वेलकम तक तो पहुंचे ही नहीं. हाँ, तो ग्रैटिट्यूड एक्सेप्ट करना और देना बहुत जरूरी है. But anyways, I would say thank you very much. You're welcome. अभी thank you very much for being part of this journey with CJ season 2. And I am very sure कि भाई आज आपने जो बातें करी हैं, जो मैंने आपसे जर्नी की पॉइंटर्स लिए हैं, फ्रॉम पैम्फलेट बांटे, आपने ऑटो में सोए, आपके फादर ने आपको जो अपब्रिंगिंग दिया, आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम ऑल्सो, एंड यू वैल्यू फॉर मनी. एंड आपने मतलब यू आर अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी, जो मैंने आपको बोला. और मुझे अब समझ आ गई कि ये हसलर की एनर्जी कहाँ से आती है. ये हसलर की एनर्जी अपनी चाइल्डहुड से ही चलती आ रही है, और वो पूरी भर के बढ़ती जा रही है. बढ़ती जा रही है. ये वो सिस्टम है जिसमें भरती जा रही है, और एक कम नहीं होती है, ऊपर ही जा रही है इसको. सो आई एम ग्लैड आप आए. Because you catch a lot of people's energy and you feel that चलो Yeah. अब और stronger, harder, faster हो जाता है. राइट.
But thank you so much again, and I'm sure आज की journey people will be motivated, and if I can possibly change or we together can make some difference, तो इससे अच्छी चीज मतलब gratitude मेरे हिसाब से हो नहीं सकता. हाँ जी. So thank you once again, and welcome. you have a great energy in future and the same energy. चलो. Thank you. sir. Thank you very much. Done.